Hello students, how are you? I hope you all are fine. My dear students, in this video we will discuss examples of irrational numbers. Yesterday I told you the terms terminating, non-terminating, recurring and non-recurring. And today we will discuss some more examples of irrational, the numbers whose decimal expansions is non-terminating and non-recurring is called irrational numbers. Just like for an example 1.230429123456780 and so on. Okay, this is the example of irrational numbers because after decimal this decimal expansion is non-terminating, टर्मिनेट नहीं हुई, कहीं चल रही है. एंड नॉन रिक्यूरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग. इट मीन्स कई वर्ड रिपीट ही नहीं हो रहे हैं, बिना रिपीटिंग के नंबर्स चल रहे हैं. ओके, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर्स. फॉर एन एग्जांपल 2.402 002 0002 and so on. This is also an example of irrational because after decimal 102 402 then 0002 and then so on. It means देखो पहले एक 0 है, फिर 2 है, 3 है. After 100 times it will never repeat because 0 क्या है, इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज का मतलब कहीं भी रिपीट नहीं होगा. This is example of irrational numbers. √2, okay, √2, √3, √5. These are all the examples of irrational numbers because the number which is not the perfect square, then square root of that number is irrational number. अब यहाँ मैंने लिखा √4. अब 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है ना. √4 मीन्स √2 का होल स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल, 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल विद ईच अदर. द आंसर विल बी 2. अब 2 तो सिंपल रेशनल नंबर है. सो the number which is not the perfect square is irrational. So this is a rational number. ये क्या है, ये तो रेशनल हो गया, but these all are irrational numbers. Okay, and my dear students, after solving अगर आप 2 का अंडर रूट निकालोगे तो आंसर इसी फॉर्म में कुछ आएगा. डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा. तो इनका आंसर इसी वे में है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिक्यूरिंग. सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स. ओके, now dear students we will discuss law of exponents. What are the law of exponents? Because in sometimes if the base is given, okay, and the base and power is given, how can we solve the power? If we know the law of exponent, then easily we can solve the power also. Now look here. First law of exponent is a raised to power m dot a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. It means if the base are same and the powers are different, then the result will be you can add the power. Okay, for an example look here, 2 raised to power 3 multiple 2 raised to power 4. ठीक है ना. द आंसर विल बी, देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 यहाँ पे मल्टीपल किया है ना. अब देखो कैसे सोल्व करोगे. 2 की पावर 3 मीन्स 1 2 3 मल्टीपल 2 की पावर 4 1 2 3 4. तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 ही तो हो गया ना. तो वही हमने लिखा है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है. द आंसर विल बी वी कैन ऐड द पावर्स. सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n is equal to a की पावर m minus n. a means if the base are same and the powers are different and they are in the division form, here they are in the multiple form na, and they are in the division form, then we can subtract the power. हम subtract कर सकते हैं पावर को. For an example यहाँ देखो 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 3, यही है ना. a means base we can take 2 and the m or n, it means the powers are different. The answer will be subtraction of powers. देखो कैसे, 2 की पावर 5 1 2 3 4 5, आपने 2 को 5 टाइम्स लिखा,
डिवाइड बाई 2 की पावर 3, हमने 3 टाइम्स लिखा, ठीक है ना, तो 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या हो गया 2 की पावर 2, आंसर 2 आया ना। इसका मतलब ये 2 कैसे आया, 5 और 3 के सब्ट्रैक्शन कर दो, ठीक है ना। तो a की पावर m बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। थर्ड, a की पावर माइनस m इज इक्वल टू वी कैन राइट 1 बाई a की पावर m, ठीक है। यहाँ देखो कैसे होगा इसका एग्जाम्पल, अगर बेस a है और पावर सब्ट्रैक्शन में है, तो इसका मतलब आप पावर्स को रिवर्स करके वो पॉजिटिव पावर बन जाएगी, 2 की पावर माइनस 3, ठीक है ना। अगर पावर के आगे माइनस का साइन है, इसे पॉजिटिव लाना है, तो बेस को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, ठीक है ना। तो बेस को इंटरचेंज मीन्स अब बेस न्यूमिनेटर में है, बेस डिनोमिनेटर में आकर पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अवर नेक्स्ट, a की पावर m रेज टू पावर n, पावर ऑफ पावर, दैट मीन्स मल्टीप्लाई द पावर, तो हम लिख सकते हैं a की पावर mn, ठीक है ना। पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई द पावर, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 की पावर 2, ठीक है, एंड इसकी पावर 3, तो पावर ऑफ पावर, बेस तो सेम है दोनों का, तो हम लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई द पावर मीन्स 3 क्रॉस 2 6, वैसे ही mn की मल्टीपल mn हो जाएगी, ठीक है ना। तो पावर ऑफ पावर मीन्स मल्टीप्लाई द पावर। नेक्स्ट अवर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज a रेज टू पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 है, द आंसर विल बी 1, तो आंसर क्या होगा 1। बेस की पावर 0, कोई भी नंबर है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 0, तो आंसर 1 होगा। 5 की पावर 0 1, 11 की पावर 0, आंसर 1। किसी भी नंबर की पावर 0 है, द आंसर शुड बी 1। फॉर एन एग्जाम्पल देखो यहाँ, a की पावर 0 मीन्स 1, इसका एग्जाम्पल देखो, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके। मैंने यहाँ लिखा वी कैन राइट हेयर a रेज टू पावर 15, ओके। मैं इसको यहाँ a रेज टू पावर 15 से, नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, वी कैन राइट a की पावर 0 एज a रेज टू पावर 15 माइनस 15, देखो 15 माइनस 15 मीन्स a की पावर 0 बन गया, तो 15 माइनस 15 को एक्सप्लेन करते हैं आगे, ठीक है। 15 माइनस 15 पे मैं ये रूल लगा रही हूँ, 15 माइनस 15, अगर m भी 15 है n भी 15 है, इट मीन्स आप इसे लिख सकते हो a की पावर m बाई a की पावर n, तो मैंने इसे क्या लिख दिया, a की पावर 15 बाई a की पावर 15, कैंसिल होकर क्या आ गया 1 आ गया ना। तो दैट मीन्स ये कैसे बना, देखो ध्यान से देखो, a की पावर 15 बाई a की पावर 15, बेस सेम है, पावर इट विल बी सेम और नॉट, इट मे और नॉट बी इक्वल, ओके। तो अगर डिवीजन में है सॉरी, इफ द डिवीजन इन फॉर्म, अगर आपके पास पावर a की पावर m और a की पावर n है एंड बोथ आर इन डिवीजन फॉर्म, दैट मीन्स द रिजल्ट विल बी वी कैन सब्ट्रैक्ट द पावर, तो इसका आंसर क्या होगा, a की पावर, हमने पावर को सब्ट्रैक्ट कर दी, तो 15 माइनस 15 ही हो गया ना इसका आंसर, ठीक है। तो 15 माइनस 15 का मतलब 0, 15 में से 15 क्या 0, तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इफ दे विल कैंसल द आंसर विल बी 1, ओके। इन प्लेस ऑफ 15 वी कैन टेक 2 3 4 5 एनीथिंग वी कैन टेक, सो द रिजल्ट विल बी, किसी भी नंबर की पावर 0 है, द आंसर विल बी 1। नेक्स्ट, in all cases the base are same, the powers are different, अगर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो क्या होगा। अब यहाँ देखो, मैंने बेस डिफरेंट लिया, मैंने लिया a की पावर m और अगला बेस ले लिया b की पावर n, यहाँ क्या है, बेस डिफरेंट है बट पावर्स क्या है, m और m सेम, ठीक है ना। अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो पावर को ऐड नहीं करोगे ना, क्योंकि तो बेस अलग है दोनों के, तो क्या करोगे, वी कैन मल्टीप्लाई द बेस, a b की पावर m, पावर को कॉमन लेकर, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल फॉर्म है ही ऑलरेडी, ठीक है, तो पावर कॉमन होके a और b की क्या होगी, मल्टीपल। फॉर एन एग्जांपल यहाँ देखो, 5 रेज टू पावर 2, 7 रेज टू पावर 2, ठीक है, 5 की 2 7 की 2, तो हमने इसका रिजल्ट क्या किया,
5 क्रॉस 7 की पावर 2, 35 की पावर 2. The answer will be 35 power raised to power 2. Okay, these all 6 are the law of exponent. These are very most important, because in first chapter in exercise 1.5 we will discuss all these law of exponent, and with the help of this we will find our solutions. Okay.